Hi everyone, Medashna Sangwan is there before you with the new words of vocabulary. And if you will have a look on these words, अगर आप इन words की तरफ एक बार ध्यान से देखें, and you must be saying that important, many, advantage, disadvantage, lack, harmful, huge, very high, encourage, slow. तो आप कहेंगे कि मैम तो बोल रहे हैं कि न्यू वर्ड्स लेकर आई हूँ, दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग रेगुलरली आप इनको यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रही हूँ, तो आप लोगों को नहीं लगता कि हमने इन वर्ड्स को यूज कर करके वॉर्न आउट कर दिया है, घिसा दिया है इन वर्ड्स को यूज कर करके। तो इनकी जगह पर इनके कुछ सिनोनिम्स भी हैं दैट वी कैन यूज एट देयर प्लेस। वी कैन रिप्लेस दीज वर्ड्स विद द न्यू वर्ड्स, जिससे हमें लगेगा कि वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एरा एंड वी आर यूजिंग द मॉडर्न इंग्लिश इन आवर सेंटेंसेस। लाइक इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट को और हम क्या क्या बोल सकते हैं? इम्पॉर्टेंट वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and the role of parent is very important in life. So why to use important word everywhere? So what are the other words that we can use at the place of important? For example, important की जगह जो word है, we can use crucial, we can use imperative, we can use indispensable. Indispensable means the place that cannot be taken by any other thing or any other person. Like the role of parents in our life is indispensable. तो what do you think? क्या parent का जो place है, parent की जो जगह है हमारी life में, कोई और ले सकता है? नहीं। तो इम्पोर्टेंट वर्ड अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो वी आर रॉन्ग। तो पेरेंट की इम्पोर्टेंस के लिए जो वर्ड आएगा दैट इज इनडिस्पेंसिबल, क्योंकि पेरेंट की जगह हमारी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट वर्ड है मैनी। देयर वर मैनी पीपल इन द हॉल। ओनली मैनी। वाई मैनी? मैनी की जगह और कौन कौन से वर्ड हैं दैट वी कैन यूज? लाइक वेरियस, न्यूमरस, plenty of, countless. So these are the words that can replace, four words are there that can replace many. There were numerous people in the whole. There were countless people in the whole. Next word है advantage. What are the advantages of TV? What are the advantages of computer? तो advantage word एक ऐसा common word है that must be heard by everyone. Advantage की जगह हम और कौन सा word use कर सकते हैं? Like pros, positives and pros है, positive है, merit word है, merits, demerits, like तो advantages, pros, positives and merits. In the same manner disadvantage, pros का उल्टा cons, positive का opposite है negative और merits का opposite है demerits, drawbacks, shortcomings. These all are the synonyms that you can use at the regular basis for the word disadvantage. Next word है lack. Lack means किसी चीज की कमी, like shortage. There is a shortage of water in Rajasthan. Shortage. Next lack का replacement है scarcity. Scarcity भी क्या होती है? कमी होती है. And next word है dearth. Dearth is also a lack of something. Then harmful. हमें harmful का पता है, hardly dangerous का पता है, dangerous. Injurious आपने word read किया होगा. Injurious. Smoking is injurious to health. Intake of alcohol is injurious to health. Injurious और word भी हैं इसके like detrimental, deleterious,
These are also the synonyms that you can use at the place of harmful. Next is hues. Eradicate corruption, the social evil corruption from our society is a huge task. तो इस hues के लिए आप कौन सा word write कर सकते हो? It is enormous. Enormous task, or you can say mammoth task. Eradicate the social level corruption from the society is a mammoth task. मतलब बहुत बड़ा टास्क है सोसाइटी से करप्शन को निकाल बाहर करना, इरेडिकेट करना. नेक्स्ट वर्ड है वेरी हाई. वेरी हाई यू कैन यूज इन द सेंस दैट द प्राइस ऑफ राइस इज वेरी हाई. तो वेरी हाई के लिए आप क्या राइट करेंगे? एन exorbitant. An exorbitant rise मतलब बहुत ज्यादा राइज आना, हाइक आना किसी भी प्राइस में, तो दिस इज कॉल्ड exorbitant. There is an exorbitant rise in the price of automobiles today. Encourage. Encourage, motivate, बड़ा सिंपल सा वर्ड है. Motivate, encourage का synonym है. Then you can use the word persuade. Then next is propel. So these are the different words that can replace the word encourage. Then slow. Slow, she is very slow. Move करना, right? और slow के लिए अगर मैं synonym का use करूं, that can be sluggish. The network was very sluggish. Otherwise, I would be calling you. मैं तुम्हें कॉल करता अगर नेटवर्क इतना स्लगिश ना होता. The facility of water in Rajasthan is very sluggish. स्लगिश का मतलब है, सपोज यू आर यूजिंग द मोबाइल्स, आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क कभी कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है. ऐसे ही रेन का होता है, कई बार आ गई कई बार नहीं आ गई. तो कुछ जगह पर ऐसा होता है कि ट्रेन फैसिलिटीज हैं या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं दैट आर वेरी स्लगिश, कि प्रॉपर एक फिक्स टाइम नहीं है किसी भी चीज के आने का, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, चाहे वो आपका नेटवर्क है. सो वेयर कुछ चीजें ऐसी हैं, आ गई कभी नहीं आई, कभी आ गई कभी नहीं आई, तो वहां पर आप वर्ड यूज करेंगे इट्स वेरी स्लगिश. So these are the synonyms of these particular words that you have been using for a long time. Important बड़ा कॉमन सा वर्ड था. deliberately मैंने बड़े कॉमन से वर्ड्स उठाए हैं इसके लिए, so that you will come to know that what are the other words that we can use to replace these words. क्योंकि हमने इनको worn out कर दिया इन वर्ड्स को यूज कर करके. और कहीं ना कहीं चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या आप वर्किंग में हैं कहीं भी, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड यूज और यू मस्ट यूज द न्यू वोकैबुलरी whatever you are writing or you are speaking. और आप लोगों की भी विश होती है कि इम्पोर्टेंट को और हम क्या बोल सकते हैं या मैनी को और हम क्या बोल सकते हैं. सपोज disadvantages word है, for example pros and con you know very well, positive and negatives you know very well, merits demerits. तो ड्रॉबैक्स है, शॉर्ट कमिंग्स हैं, इल इफेक्ट्स हैं. इस चीज का कोई इल इफेक्ट्स तो नहीं रहेगा ना, कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना इस चीज का, तो वो भी क्या हुआ, उसका डिसएडवांटेज ही हुआ. एंड लैक के लिए एक जो मेन वर्ड है दैट इज डर्थ. डर्थ वर्ड में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट डज इट मीन, कि डर्थ का क्या मीनिंग होगा. शॉर्टेज, अनअवेलेबिलिटी or scarcity. So these are the common words and you may be reading these words somewhere. कहीं ना कहीं आप इनको read भी कर रहे होंगे, लेकिन that time you are not putting your attention to these words कि yes ये मैंने ना कहीं read किया था and that time I didn't get the meaning of this word. Suppose आपने detrimental read किया हो, deleterious read किया हो, you must have read these words somewhere. कहीं ना कहीं आपने read भी किए होंगे, लेकिन एक डाउट रहता है कि हाँ मैंने वर्ड रीड तो किया था but that time I didn't have my mobile with me और मैंने फाइंड आउट भी नहीं किया कि what the correct meaning of that word. So in this way you will practice these sentences. और इसको प्रैक्टिस करने का एक छोटा सा जो मेथड है, तरीका है, आई एम टेलिंग यू. आपने क्या करना है, जहाँ कहीं भी आप जिस भी सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज कर रहे थे, दीज वर्ड्स का जहाँ आप यूज कर रहे थे, ट्राई टू फ्रेम योर सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. इन सभी वर्ड्स के साथ आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने का ट्राई करिए एंड देन प्रैक्टिस टू स्पीक.
उसी को फिर आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, उन्हीं सेंटेंसेस को जो आपने फ्रेम किए हैं इन्हीं वर्ड्स का यूज करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। चैनल ड्रीम इंग्लिश इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।